Hello children, today's our topic is a very interesting story, Stone Soup in Bohemia, from the English Literature book of DAB Class 7, Chapter 6. The name of the writer is not given in the book since it is a very old story and the writer of the story is unknown. So before reading this story, let us do the word meanings. Word meaning number 1. Drab, boring, especially in appearance. Number 2. Threadbare, poor or shabby in appearance. Number 3. Meager, lacking in quantity or quality. Number 4. Cauldron, a large metal pot with a lid and handle used for cooking over an open fire. 5. Village square, a small open space area used as the informal meeting place for local residents. Number 6. Hostility, an extremely unfriendly behavior. Number 7. Burgomaster, chief magistrate. Number 8. Resentment, feeling of anger. Number 9. Despondent, depressed, downhearted. Number 10. Baffle, totally bewildered or confused. Number 11. Grumpy, ill-tempered. Number 12. Sly, cunning and tricky. Number 13. Desultory, without any purpose or enthusiasm. Number 14. Sheepishly, like a sheep in timidity or stupidity. Number 15. Impulse, a sudden strong desire to do something. Number 16. Anecdotes, short stories based on personal experience. Number 17. Wafting, moving gently through the air. Number 18. Portly, fat and round. Now let's move to the text. Stone Soup in Bohemia. Read the story and find out how a hungry soldier's intelligence fetches him a satisfying meal. स्टोरी को पढ़ें और देखें कैसे एक भूखे सोल्जर की बुद्धि के वजह से उसे एक संतोषजनक खाना मिलता है. In Europe, in the old days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. They depended partly upon the kindness of the populace and partly, as we shall see in this tale, upon their own sharp wits. पुराने समय पे यूरोप में सैनिक जब युद्ध से लौटते थे तो आसपास के गांव में घूमते रहते थे. वो अपने खाने पीने और रहने के लिए कुछ हद तक गांव के लोगों के दया के ऊपर डिपेंडेंट होते थे और कुछ हद तक अपनी तेज बुद्धि के ऊपर, जैसा कि हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे. 3 or 4 centuries ago, in Bohemia, a soldier reached a small village. It was a drab, threadbare kind of a place, but he walked into the village square and unloaded his meager kit, a rough leather pack, a horsehair blanket, and an iron cauldron, which he carried on his back like a hump. Stretching himself, loosening his coat, and taking his boots off, he settled down on the pavement for the night. 300-400 साल पहले की बात है. बोहेमिया में एक सैनिक युद्ध से वापस लौटते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचता है. वो गांव पुराना सा था और देखने में जरा भी सुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोल्जर चलते हुए विलेज स्क्वायर में पहुंचता है और अपना छोटा सा किट को उतारता है, जिसमें से उसने लेदर का एक रफ पैक निकाला, एक हॉर्स हेयर से बनी हुई कंबल निकाली और एक लोहे का बर्तन निकाला जिसे वो अपनी पीठ पे लाद के चलता था. कैमल के पीठ पे जैसे हम्प होता है, ये बर्तन भी उसकी पीठ पे वैसे ही लगता था. उसने अपने हाथ पाँव को स्ट्रेच किया, यानी खुद को रिलैक्स करते हुए अपने कोट को ढीला किया, अपने बूट उतारे और वहीं पेवमेंट में रात गुजारने के लिए बैठ जाता है. Almost at once he felt a certain hostility among the passers-by, a grumpy resentment. "I suppose you think we are going to feed you," said one sly old man, leaning on his stick as he watched the soldier. "Well, I'll have you know, young man, that I am the burgomaster of the village, and I will tolerate no good for nothing here. We have mouths of our own to think of." और वो जैसे ही बैठता है उसे उसके आसपास से गुजरते हुए लोगों में एक गुस्से की, नाराज़गी की फीलिंग आ रही थी, जैसे कि ये सोल्जर जोर जबरदस्ती उनका मेहमान बनना चाहता है. इतनी ही देर में एक धूर्त बूढ़ा आदमी जो अपने लाठी के ऊपर झुका हुआ था,
उसने सैनिक को देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो कि हम लोग तुम्हें खाना खिलाएंगे, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस गांव का सरपंच हूं और मैं यहाँ पे कोई भी बेकार लोगों को बर्दाश्त नहीं करने वाला। हमारा भला बुरा सोचने के लिए हमारा खुद का दिमाग ही काफ़ी है। डू यू हेयर मी यंग मैन, सेड दिस हॉरिड पर्सन। मैं क्या कह रहा हूँ ये तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, उस भयानक आदमी ने कहा। द सोल्जर heard all too clearly, if only because the burgomaster was now bellowing at the top of his voice, and the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. Not a bean will I give him, a woman with a wart on her nose was saying. Not a single peapod. We are respectable folk here, said another. Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. सैनिक ने सारी बात साफ साफ सुनी, क्योंकि वो बर्गोमास्टर अपनी आवाज़ की सबसे ऊंची वॉल्यूम में चिल्ला रहा था और उसके चारों ओर जो छोटी सी भीड़ जमी थी वो भी उसकी बात पे सहमति जताते हुए उसको दोहरा रहे थे। भीड़ में से एक औरत ने, जिसके नाक पे एक वर्ट यानी मस्सा था, उसने कहा, मैं तुम्हें एक बीन भी नहीं दूंगी। दूसरा आदमी बोला, हम तुम्हें मटर का एक दाना भी नहीं देंगे। हम सब यहाँ पे इज़्ज़तदार लोग हैं। विलेज स्क्वायर में जमायत हर एक आदमी सोल्जर के यहाँ रुकने पे अपनी असहमति जताने लगा और वो शायद इस सोल्जर को माफ़ कर भी देते अगर वो थोड़ा भी दुखी हो जाता। In fact, he was not disheartened at all, for he was extremely cheerful. He swept off his red cap, made a mock bow to the assembly, winked at the woman with the wart on her nose, and said, all right, friends, all right. Mr. Burgomaster, sir, don't worry. I won't ask a thing of you. I'll just spend the night here, if I may, minding my own business, and in the morning I will be on my way. I know how you all feel, and I don't blame you for it. We old soldiers, we can be a nuisance sometimes. No, don't you worry. I'll just clean up my cauldron, and he rubbed the inside of the pot in a desultory sort of way with a spotted handkerchief. Just prepare the crockery and make myself a nice bowl of stone soup. लेकिन वो ज़रा भी दुखी नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपनी लाल रंग की टोपी उतारी और लोगों को सम्मान दिखाने के लिए उनके सामने सर झुकाते हुए उस औरत को, जिसके नाक पे मस्सा था, उसकी ओर देखते हुए कहा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सरपंच जी, चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों से एक चीज़ भी नहीं मांगूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ रात गुजारूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैं अपने काम से मतलब रखूंगा और सुबह होते ही मैं अपने रास्ते पे चल पड़ूंगा। मैं जानता हूँ आप सब कैसा फील करते हैं और इसके लिए मैं आप लोगों का दोष नहीं दे सकता। हम बूढ़े सोल्जर्स कभी कभी आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं अपने इस बर्तन को साफ़ करूँगा। और ये बोल के वो डिज़ल्टरी मैनर में, यानी बिना किसी उत्साह के, अपने बर्तन के अंदर वाले हिस्से को अपने एक रुमाल से, जिसमें कुछ दाग धब्बे थे, उसे साफ़ करने लगा। मैं अपने इस बर्तन को साफ़ करके तैयार कर रहा हूँ और मैं इसमें मेरे लिए एक टेस्टी सा स्टोन सूप बनाऊँगा। And so saying, he pulled out of his pack 2 large stones. Popping them into the cauldron, he filled it up with water from the village pump, lit a fire of sticks, and settled down upon the ground to wait for the brew to boil. The villagers looked on stupefied. Stone soup? Was the man mad? Just stones in water? What kind of stones? Was he a magician? Who has ever heard of such a dish? Stone soup? Ran the murmur around the square. और ये बोल के वो अपने बैग से 2 बड़े बड़े पत्थर निकालता है। उसने बर्तन में आवाज़ करके पत्थरों को डाला और फिर पास ही के एक पंप से उस बर्तन में पानी भरा, लकड़ियों से आग जलाई यानी चूल्हा जलाया और ग्राउंड में बैठ के झोल में बॉयल आने का इंतज़ार करने लगा। वो सारे लोग बुद्धू बन के उसे देखने लगते हैं और आपस में फिसफिसाने लगते हैं। स्टोन सूप
कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? पानी में सिर्फ पत्थर? कैसे पत्थर हैं ये? क्या ये कोई जादूगर है? क्या किसी ने कभी ऐसी डिश के बारे में सुना है? स्टोन सूप। विलेज स्क्वायर में चारों ओर यही आवाज़ें गूंज रही थी। All right then, said the soldier, stirring the pot with a wooden spoon. Don't upset yourself. It is just a little prehistorical recipe I picked up in the foreign, presented to me by a saint in gratitude for my having saved his life when threatened by wild elephants. These two stones have the power to brew for me the most delicious, the most mouth-watering soup that ever a man tasted. Stone soup from China. Ach! And taking a little of water in his spoon, he sipped it with relish. Coming along very nicely, said he, while the peasant watched in baffled silence. This is the very same soup that Alexander drank the night before he stormed the pyramids. Stone soup from China. The soup for heroes. You all look a friendly lot of people. I like your faces. Suppose I make a bit extra for you. Ish. The cauldron is big enough. Just a bit more water. That's it. Stoke up the fire. Give it a stir. There we are then. वो सोल्जर अपने सूप को वुडन स्पून से चलाते हुए कहता है, ठीक है, आप सब परेशान मत होइए। ये एक प्री हिस्टोरिक रेसिपी है, यानी बहुत साल पहले की, जब कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं थे। ये जब मैं फॉरेन में था तब मैंने जंगली हाथियों से एक साधु की जान बचाई थी और उसने अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए मुझे उपहार स्वरूप ये दोनों पत्थर दिए थे, जिनमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा टेस्टी, जिससे मुंह में पानी आ जाए और जैसा किसी ने कभी नहीं चखा हो, ऐसा सूप बनाने की मैजिकल पावर है। स्टोन सूप जो चाइना में बनता है और अपने बाउल में चम्मच से थोड़ा सा सूप लेके टेस्ट करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही टेस्टी है। और सारे फार्मर उसे विस्मित होकर चुपचाप देख रहे थे। ये वही सूप है जो अलेक्जेंडर ने पिरामिड को जीतने के पहले पिया था, वो स्टोन सूप। ये स्टोन सूप हीरो लोगों के लिए है, मतलब बहादुर होशियार लोगों के लिए। आप सब लोग इतने फ्रेंडली हैं, मुझे आप सबके चेहरे काफ़ी पसंद हैं। काश मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बना पाता। ये बर्तन तो काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा और पानी और उस आग को थोड़ा और तेज करना है। Enough for us all to have a bowlful. The citizens were taken aback. Are you trying to tell me, said the burgomaster severely, that all you need to make your soup is just those two stones and a pot full of water? That's all, sir, replied the soldier. Nothing more nor less. Tell you what, stone soup is even better, even more breathtakingly wonderful, with just a pinch of garlic or of a carrot brings out the flavor. You know, cauliflower is the next best thing. Anybody got a bit of green stuff to throw in now while I make sure the stones are fermenting properly? और तब आप सभी के लिए एक एक बाउल सूप तो बन ही जाएगा। ये सुन के गाँव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब बार्गोमास्टर कहते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें ये सूप बनाने के लिए सिर्फ ये 2 स्टोन्स और 1 प्याला पानी चाहिए? सोल्जर ने कहा, हाँ सर, सिर्फ यही चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सूप और भी ज़्यादा टेस्टी बन सकता है अगर इसमें थोड़ी सी गार्लिक यानी लहसुन और गाजर मिला दी जाए, तब इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। और अगर इसमें कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी भी मिला दी जाए तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। और अगर किसी के पास कुछ ग्रीन स्टाफ यानी साग, धनिया ये सब है तो ये भी मिला दिया जा सकता है। इतनी देर मैं ये देखता हूँ कि ये स्टोन सही ढंग से पक रहे हैं या नहीं। The peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. Nobody wanted to move first. Nobody wanted to admit his curiosity. Nobody wanted to make a fool of himself. But suddenly a common impulse overcame them all. Well, they said, just a piece or two could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes.
Stone soup, after all, was something new in their lives, and they might as well make the most of it. ये सब सुन के यहाँ पे खड़े सारे किसान डरे डरे से और संदेहपूर्ण नज़रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये स्टोन सूप कैसा होगा ये जानने के लिए सभी आग्रही थे, पर कोई भी अपना आग्रह जताना नहीं चाहता था, आगे आना नहीं चाहता था, कोई अपने आप को बुद्धू साबित करना नहीं चाहता था। लेकिन अचानक से सभी के मन में एक प्रेरणा आई। उन्होंने कहा, ठीक है कि अब 2 पीस देने में कोई नुकसान नहीं है। 1 मुट्ठी मटर, 2 टमाटर। स्टोन सूप उनके जीवन में एक नई चीज़ है और वो ज़रूर इसका जितना हो सके लाभ उठाएंगे। One by one, they slipped away and came back with a contribution. This place went half a turnip, in went a potato, in went cabbage and onions and peas, until the brew was marvelously thick and fragrant, and you could not see those 2 stones for the bubble and the richness of it. Splendid, said the soldier. Oh, what a dinner we are going to have, one and all of us, in this benevolent and hospitable village. It is not every night of the week that you have stone soup in Bohemia, Mr. Burgomaster, sir. And thus carrying them along with a joke for an old woman, a dig at a portly merchant, a little flattery for the Burgomaster, and a flood of anecdotes. The soldier had all the citizens sitting around him, wondering and expectant, until at last the soup was ready. Its nourishing vapors were wafting around the square. A pile of bowls had appeared, and they all sat on the paving stones, the soldier in the middle, sipping the stuff with infinite satisfaction. एक एक करके सभी गए और कुछ कुछ लेके आए। इस सूप के पानी में गया आधा टर्निप यानी सलजम, इसमें गया आलू, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, जब तक कि ये झोल बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया और इसमें से खुशबू आने लगी। सोल्जर ने कहा, वाह, बहुत बढ़िया। सोल्जर ने कहा, यहाँ पे हर एक इंसान का, जहाँ के सारे लोग परोपकारी और अतिथिपरायण हैं, सभी का रात का भोजन बहुत अच्छा होने वाला है। बोहेमिया में सप्ताह के हर एक रात आपको ये स्टोन सूप मिलने वाला नहीं है। और फिर उनमें हास परिहास शुरू हो जाता है। वो एक ओल्ड वोमेन का मजाक उड़ाने लगते हैं, फिर एक मोटे से व्यापारी का, फिर बर्गोमास्टर की फ्लैटरी करते हैं, खुशामद करते हैं और फिर कई सारे अपने जीवन का अनुभव उनसे साझा करने लगता है। इस तरह उन अनफ्रेंडली विलेज के लोगों के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। सभी गांव के लोग सोल्जर को घिर के उसके चारों ओर बैठ गए। सभी इस सूप को पाना चाहते थे और अंत में सूप तैयार हो गया। इसकी सुंदर खुशबू विलेज स्क्वायर के चारों ओर फैल रही थी। सभी अपने अपने लिए कटोरे लेके आ चुके थे और यहाँ पे बहुत सारे कटोरियों की ढेर लग गई थी। सब पेवमेंट में बैठ गए अपने अपने सूप बाउल के साथ। वो सोल्जर बीच में बैठ के असीम संतोष से भरा हुआ अपने सूप की चुस्कियाँ ले रहा था। Exquisite, said the burgomaster, who prided himself on knowing about the food. Magnificent, said the portly merchant, who was very fond of eating. Real tasty, I must say, observed the woman with the wart on the nose. On the top of the great wall, did you say? Asked one youth with his mouth full. Alexander the Great, do you mean? Queried another. Stone soup, said the last of them, all talking at once. What a miracle, what a marvelous gift from China. And the soldier chuckled to himself as he had his soup comfortably. ये एकदम अनोखा है, बर्गोमास्टर ने कहा, जिसे अपने ऊपर गर्व था कि वो खाने के बारे में सब कुछ जानता है। बहुत बढ़िया, पोर्टली मर्चेंट ने कहा, इसे खाने पीने का बड़ा शौक था। फिर वो औरत जिसके नाक पे वाट था, उसने कहा, मुझे कहना पड़ेगा, ये सचमुच में बहुत टेस्टी हैं। फिर भीड़ में से एक जवान आदमी सूप पीते पीते बोला, आपने क्या कहा? ग्रेट वॉल में यानी चाइना में? आप क्या कह रहे थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी ये सूप अलेक्जेंडर के लिए बना था। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इस तरह सभी बात करने लगे। फिर
सब अंत में बोले, ये स्टोन सूप। सभी बोलने लगे, एक चमत्कार है, चाइना का अनुपम उपहार है। और आराम से सूप पीते पीते वो सोल्जर अपने मन ही मन हंसने लगा। सो द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। तो अच्छा बच्चों, क्या लगता है आपको, क्यों हंस रहा था वो सोल्जर? क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हुआ। उसने अपनी स्टोन सूप की झूठी कहानियों से उनको इम्प्रेस किया और वे सब अपने अपने घर से वेजिटेबल कंट्रीब्यूशन ले के आ गए, जो कि मटर का एक दाना भी नहीं देना चाहते थे। जो स्टोन्स थे वो कोई जादुई स्टोन नहीं थे, वो तो ऐसे ही मामूली से साधारण से स्टोन थे। सूप टेस्टी लग रहा था क्योंकि उसमें डले हुए तरह तरह की सब्जियों की वजह से, कुछ हद तक इस सूप के ऊपर उनकी विश्वास की वजह से, जो वो सोल्जर ने कहानियाँ सुना सुना के क्रिएट किया था। तो हम सभी ने देखा ये सोल्जर कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से उसने अपना पेट भरा, और जो बात भी नहीं करना चाहते थे, जो चाहते नहीं थे ये रुके, उन सभी को अपना दोस्त बना लिया। That's all for today. If you like the video, then please do like, share and comment. And till now, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you can be notified whenever I upload a new video. Thanks for watching. Bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।